Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Aquarius Ascendant and the predictions for the month of March 23. Aquarius Ascendant are extremely hardworking people and they possess a tremendous ability to tolerate things. The sign of Saturn falls in the first house, which means that Saturn becomes the ruling planet in their life. And if Saturn is present in the first house, fourth house, or in the 10th house, these people will have to slog really hard at their workplace in order to progress in their life. And it is always very difficult for other people to gauge what Aquarius ascendant people are thinking, and Saturn for them always provides things after a lot of delay. And sometimes you will see that whatever people wanted in their lives, they get that thing in the old age. And that is why things then become meaningless for them because they cannot utilize it or they cannot enjoy it at the end of their lifespan. Key for Aquarius ascendant people is to utilize the significations of Venus. See, Venus is a highly benefic planet for Aquarius ascendant because it owns the fourth house, it owns the ninth house of luck. So, if they dial up the significations of Venus in their life, how would they do that? By using perfumes, wearing fashionable clothes, taking a bath every day, remaining cheerful all the time, cultivating a positive outlook towards life. Apart from this, males should always remain clean shaven. Venus is a strong benefic would also mean that Aquarius ascendant people derive a lot of benefits from females in their lives, and all the females, whether they appear in the form of mothers, sisters, or spouse, they prove extremely lucky for the Aquarius ascendant people. Now, the sign of Scorpion falls in the 10th house, which is a secretive sign. People in the Aquarius ascendant gets benefited from sectors like petrochemicals, construction, fertilizers, cement, agriculture, and specialty chemicals. And you will see a lot of people working in these sectors who belong to the Aquarius ascendant. Now, coming to the predictions for the month of March. For the first 14 days, 7th house Lord Sun is going to be in the first house along with its staunch enemy Saturn. Now, both these planets, whenever they get together, they usually destroy the significance of that house. Now, in this case, the house is ruled by Saturn, so the damaging impact will be very restricted. You will see a lot of people approaching you if you are a businessman in the first half of the month. And for people who have individual businesses, time till 14th of March will be very good. On the other hand, differences of opinion are going to crop up with your spouse. And in case of business which is run in the partnership, these differences are again going to be seen with your business partner. In most of the cases, Aquarius ascendant people get a dominating spouse, and the first half of March differences are going to get created because of the domineering nature of the spouse. So after 14th of March, when Sun moves to the second house where it will combine with Jupiter, this combination is considered good, but Sun is going to be in the full water sign where it is extremely uncomfortable. So between 16th to 24th of March, you should avoid acting on the advice that is provided to you by your friends, social networks, and elder siblings. Moon is the lord of service for your ascendants, and all those people at jobs will see good time in their work sphere at the end of the month. So, time from 28th of March to 31st of March is going to be very good if you look at it from a job point of view. And apart from this, time frame from 25th of March to 7th of April will also be very good from meeting your long-term goals and something that you are aspiring to achieve from a very long time. Now let us look at other planets one by one. Mercury is the fifth house lord, and fifth house denotes speculation and education. It is going to transit through the first house till 15th of March, and then it will be in the second house till the end of the month. Now, Mercury is going to get sandwiched between Saturn and Sun. Both the planets are malefic in the first half of March, and then it is going to sit with Jupiter and Sun in the second half of March, and both of them are friends with Mercury. Second half of March is going to be more beneficial for people. Students will also see a very good time between 15th to 25th of March, and speculators are going to have a field day on 23rd and 24th of March. Now there are also certain days when you need to remain cautious and you should avoid taking any key decisions. So these days for you in the month of March are 4th and 5th of March.
9th and 10th of March and 18th and 19th of March. That is the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुंभ लग्न के लिए मार्च का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, कुंभ लग्न के लोगों के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनका जो लग्नेश होता है शनि, वो ही कर्म कारक ग्रह है। तो इन लोगों को जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे लोगों में झेलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये जीवन में कई चीज़ें आसानी से झेल जाते हैं जो कि बाकी लग्न के लोगों को बिल्कुल तोड़ सकती हैं, ऐसी चीज़ें भी। इन लोगों की जन्म कुंडली में लग्न स्थान में होता है, चतुर्थ में होता है, दशम भाव में होता है, तो इनको कर्म क्षेत्र में पूरे पहाड़ चढ़ के जाने पड़ते हैं जिंदगी भर, तब कहीं ये जाके किसी जगह पे पहुंच पाते हैं। इनका जन्म मेहनत करने के लिए हुआ है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और आप देखेंगे कि जितने भी कुंभ लग्न के लोग हैं उनके बारे में आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो क्या सोचते रहते हैं। उनकी थॉट प्रोसेस को पढ़ पाना या समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। होता ये है कि शनि चूंकि लग्न स्थान के स्वामी हैं, तो ये चीजों में देने में बहुत डिले कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी की लग्न कुंडली में ही शनि प्रथम भाव में बैठा हो तो उसकी भी सारी चीजें बहुत देर से होती हैं। और मकर और कुंभ लग्न के लोगों का स्वामी ही शनि है, तो उनको भी चीजें जीवन में बहुत देर से मिलती हैं। और कई बार पूरा जीवन भर मेहनत करने के बाद उनको आखिर में जब वो चीज़ें मिलती हैं तो वो उनके लिए कुछ उसका मतलब नहीं रह जाता, जिसे मीनिंगलेस हो जाना बोलते हैं, वो हो जाता है कई बार। जो चीज़ कुंभ लग्न के लोगों के लिए एक तरह की चाबी का कार्य करती है वो ये होता है कि आप शुक्र का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक होता है। तो अगर आप शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें करते हैं, यानी हमेशा आप मुस्कुराते रहिए, एक अपना दृष्टिकोण बनाइए, जो चीज़ें अच्छी हैं जीवन में आप उन्हीं के बारे में सोचेंगे। और परफ्यूम्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, नए नए तरह के फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, हर रोज़ नहाते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, और मेल्स के लिए कि वो हमेशा क्लीन शेवन रहते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में फिर भाग्योदय करने का कारण बनती हैं। अगर आप शुक्र की बात करें तो शुक्र एक स्त्री ग्रह है, तो यहाँ पर कुंभ लग्न के लोगों के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपको हमेशा स्त्रियों से जीवन में फायदा होता है। चाहे वो माँ के रूप में आए या बीवी या बेटी के रूप में आए, आपको हमेशा स्त्रियों से घिरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भाग्योदय करने का कारण बनती हैं। कुंभ लग्न के लोगों के लिए दशम भाव में स्कॉर्पियन की राशि पड़ती है, यानी कि ये एक सीक्रेटिव राशि है। वृश्चिक राशि यानी कि गड़ी हुई चीजें, तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे रिसर्च के क्षेत्र में, या फिर आपको ऐसे लोग पेट्रोकेमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, फर्टिलाइजर, सीमेंट, एग्रीकल्चर या स्पेशलिटी केमिकल्स वाले एरियाज में भी नौकरी या बिजनेस करते हुए मिल जाएंगे। अभी अगर आप मार्च के महीने की बात करें तो पहले 14 दिन तक सप्तमेश सूर्य शनि के साथ बैठेंगे प्रथम भाव में। और ये सूर्य शनि बाप बेटा होने की वजह से इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। तो यहाँ पे सूर्य और शनि जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो उस भाव को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। अब यहाँ पे अच्छी बात है कि ये राशि शनि की है, तो जो प्रभाव होगा वो काफी हद तक लिमिटेड होगा सूर्य का। अगर आपका बिजनेस है तो लोग आपके पास खुद आएंगे पूछताछ करते हुए आपके बिजनेस के बारे में, और आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो बिजनेस के हिसाब से 14 मार्च तक का समय काफी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पति पत्नी हैं, यानी आप शादीशुदा हैं, या आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सरदर्द क्रिएट करने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कुंभ लग्न के लोगों को हमेशा एक डोमिनेट करने वाले स्पाउसेस मिलते हैं, यानी कि वो उनके ऊपर अपना रौब झाड़ते हैं, उनसे अपना काम करा लेते हैं। उस तरह का लोगों में आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनता है इसकी वजह से। तो ये चीज बरकरार रहेगी। मार्च के पहले 14 दिनों तक आपका पति पत्नी से मनमुटाव होगा, या आपका बिजनेस पार्टनर के साथ आपके बनेगी नहीं। अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए समय अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप के बिजनेसेस के लिए जब तक सूर्य यहाँ बैठा रहेगा 14 मार्च तक, तो यहाँ पे बैठ के इन चीजों को खराब करेगा। इसके बाद सूर्य द्वितीय भाव में चला जाएगा 15 मार्च से लेके मार्च के आखिर तक, और यहाँ पे बैठ के सूर्य गुरु के साथ युति करेगा। अब आप नॉर्मली देखेंगे तो सूर्य गुरु की युति अच्छी कहलाती है, लेकिन ये यहाँ पे मीन राशि में बन रही है, जो कि एक पूर्ण जल राशि है। तो सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, तो वो पूर्ण जल राशि में जाएगा, तो
सीधी सी बात है कि उसके नेचर के अगेंस्ट है ये राशि, तो अनकंफर्टेबल हो जाता है यहाँ पे। तो इसी वजह से घुसने के बाद 16 मार्च से लेकर 24 मार्च तक के समय में अगर आप अपने दोस्तों की या आपके सोशल नेटवर्क की या बड़े भाई बहनों की सलाह मानेंगे तो फिर ये आपको नुकसान करने का कार्य करेगा, क्योंकि गुरु 11वें भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पे आपको इनकी सलाह नहीं माननी है इस समय में। और अगर किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ये देते हैं आपको, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं सुननी है। चंद्र आपके छठवें भाव का स्वामी बनता है, तो जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं कुंभ लग्न के, उनके ऊपर चंद्र का प्रभाव होता है। और ऐसे लोग काफ़ी इमोशनल डिसीजंस लेते हैं अपने कार्यस्थल पे, जो भी नौकरी पेशा लोग होते हैं वो। तो कार्यस्थल पे जो सबसे अच्छा समय है वो 28 से 31 मार्च का समय है। और आपको इस समय में कार्यस्थल पे अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। इसके अलावा 25 मार्च से 7 अप्रैल तक का जो समय है, इस समय में अगर आपका कोई काफ़ी लॉन्ग टर्म का गोल होगा जिसको आप अचीव करना चाह रहे होंगे, तो आपको इस समय में वो गोल काफ़ी आपके नज़दीक आता हुआ दिखेगा या आप उसको अचीव करते हुए देखेंगे। बुध पंचम भाव का स्वामी बनता है और ये 15 मार्च तक प्रथम भाव में बैठा रहेगा। तो प्रथम भाव में ये सूर्य और शनि के बीच में पिस जाएगा। तो ये समय आप अगर स्टूडेंट हैं या स्पेक्यूलेटर्स हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही मैलिफिक भाव वाले ग्रह हैं, तो ये बुध की यहाँ चलने नहीं देंगे। 15 मार्च के बाद बुध द्वितीय भाव में चला जाएगा और यहाँ पे ये गुरु और सूर्य के साथ बैठेगा। यहाँ ये स्थिति बहुत आप बेटर कह सकते हो बुध के लिए। तो जितने भी छात्र हैं उनके लिए जो अच्छा समय रहेगा वो 15 से 25 मार्च का समय रहेगा। और शेयर बाजार में जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए 23 और 24 मार्च सबसे अच्छे दिन कहलाएंगे। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना पड़ता है, और ये वो दिन है जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से गुजरता है। इस समय आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मानसिक तौर पर व्यक्ति की स्थिति बहुत ही सबल नहीं होती है। तो ये दिन आपके लिए हैं 4 और 5 मार्च, 9 और 10 मार्च और 18 और 19 मार्च। इन 6 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना आप टालिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये महीने में पहले 14 दिन अगर आपका स्वयं का बिजनेस है तो समय अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप के लिए और आपके पति या पत्नी के साथ संबंधों के लिए पहला हाफ कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा। तो आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।